Shiv, Sadasiv and Sadanand. Mila? Shiv, Sadasiv and Sadanand are the partners sharing popular assets in the ratio equally, whose balance is given. We got the capital of Shiv and Sadasiv. जय पार्वती मैया. पार्वती लोन क्या है? ये आउटसाइडर लोन है. इज नॉट सर वाइफ का ही तो लोन है ना. वाइफ का लोन है तो क्या हुआ भाई? अंग्रेजों ने वाइफ और पर्सनल हस्बैंड को अलग कर दिया है तलाक देके. तो शिव सदाशिव एंड पार्वती लोन इज आउटसाइडर लोन. संडी क्रेडिटर and then we got Sadanand capital debit side, building machinery, data and bank balance and data है वो सब. ओके. Shiv, Sadasiv and Sadanand were declared bankrupt. All three declared bankrupt. Shiv, Sadasiv and Sadanand were declared bankrupt. Okay. Hence the firm was dissolved. Sunday asset realized. We got building, machinery and debtors. Realized expense there. Sadanand was unable to contribute anything. Sadanand surrender कर रहा, बोला भाई मैं कुछ भी नहीं ला सकता हूँ. While the 1,100 and 900 were recovered from the realization of private state of Shiv and Sadasiv respectively. मतलब 1100 bring from Shiv and the 900 bring from Sadasiv. You are required to close the books of the firm. Okay. So all partner insolvent है. Remember. So all partner insolvent. So how many extra we have to prepare the accounts? In this case 3 accounts. Which one? पार्टनर लोन एंड क्रेडिटर एंड देन वन डेफिशिएंसी अकाउंट. ओके. इस समय कोई सिक्योर्ड ऐसा कुछ बोला नहीं है. ठीक है ना. रिमेंबर. तो वी हैव टू पे द प्रोपोर्शनेटली. बाद में पे करेंगे हम लोग. और जो भी कुछ बैलेंस आया तो कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में. ओके. पॉज करो उसको. लेट्स कम. फर्स्ट कैपिटल वी गॉट. क्या पार्टनर था? शिव, सदाशिव and Sadanand. तो पहला शिव सदाशिव कैपिटल 6000 4000. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 6000 and 4000. ओके. फिर पार्वती लोन एंड क्रेडिटर. इट इज ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है. वी विल प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट. बाय बैलेंस ब्रोक डाउन. कितना अमाउंट है? 10,000 पार्वती लोन एंड द क्रेडिटर 30,000. बाय बैलेंस ब्रोक डाउन. लाइट है 10,000 वर्सेस 30,000. Then Sadanand capital 2,000. Sadanand capital. 2 balance broke down. Then we got all assets. Realization account debit to sundry assets. Building 18,300. Machinery 12,700. Debtor 9,100. And bank balance 7,900. Okay. 2 balance broke down. Right. इतना हो गया पहले. Right ना. So all asset we have transfer everything. Now what given? Sundry asset realize. Asset realize. क्या करो पल्लवी? Asset realize. By cash bank account. क्या है? Building 10,900. And then machinery 8,200. And data 6,800. 20, 10, 19, 1, 14, 15, 1, 2, 25,900. बराबर. इन रियलाइजेशन बाय कैश बैंक. तो कैश बैंक में 2 रियलाइजेशन अकाउंट. असेट रियलाइज
25,900. ये हो गया asset realize. Okay. Then what have we have? Realization expense 1,300. Realization expense. Realization to cash bank. 1,300. Okay. Realization to cash bank. So in cash bank, buy realization account. 1,300. Right है? चलो. Then what we have? Sadhanand capital. Sadhanand was unable to bring anything, but the 1,100 and 900 will be recovered from the realization of private state of CU and Sadasiv. So capital bring by something bring by who? CU and Sadasiv. Cash is coming in. तो cash account debit to CU और फिर cash account debit to Sadasiv. और कंबाइन एंट्री कैसे क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीयू कैपिटल टू सदाशिव कैपिटल. कैश आ रहा है ना? कैश आ रहा. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सीयू कितना ब्रिंग कर रहा है? 1,100. सदाशिव 900. राइट. तो कैश ब्रिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. पैसे आ रहा है कैश अकाउंट को लेके आ रहा है सीयू एंड सदाशिव. कैश टू कैपिटल इन कैपिटल बाय कैश बैंक. 1,100 एंड 900. बस ठीक है, सब हो गया क्लियर. और कुछ बाकी है बैलेंस के अंदर? पहला असेट रियलाइज हो गया, एक्सपेंसेस देयर एंड द पार्टनर समथिंग ब्रिंग. राइट. आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट रियलाइजेशन क्लोज करो. 00,314,11,14. 1, 10, 11, 20, 21, 2, 41 बराबर है. चेक करवाए 20, 30, 30, 31, 31, 40, 41, 400 बराबर भाई. 41, 400. 20, 14 minus 9, 5, 10, 10 minus 5, 5, 3. राइट है. कितना दिया उधर पे? तो ये ओके. लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है? इक्वल है. सीयू सदाशिव सदानंद. How to do? 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 ना 2, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, वो आएगा 6 6 6. ओके दैट मैच आएगा. अब सबका इक्वल ही है तो 5 1 6 7, 5 1 6 7. अब 5 1 6 7 करूँगा देखो 7 7 14 एंड 7 21 इक्वल है ना. तो डिवाइड बाय 3 किया हम लोगों ने तो 5166.66 आ रहा है. तो 5167 5161 तो इसका भी टोटल करूँगा ना तो ये 15,501 रुपीज़ हो जाएगा. तो क्या करो एक पार्टनर का कम कर दो. ओके उसके लिए लोग तलवार निकाल के झगड़ा नहीं कि मेरा क्यों कम किया भाई. आप आइदर वन किसका भी कम करो चलेगा. चलो मैंने 6 कर दिया. ओके बराबर ना इतना. लॉस डिस्ट्रीब्यूशन टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,167, 5,167 एंड 5,166. यहाँ तक तो हो गया. नाउ वी हैव टू पे द लायबिलिटी ना. पार्वती लोन एंड क्रेडिटर. तो पार्वती को 10,000 पे करना था और क्रेडिटर को 30 यानी 40,000 वी हैव टू पे आउटसाइड लायबिलिटी. We have to see that whether how much the cash available. Get the total first. 20, 9 1 10 1 19 19 8 28 ना 28 2 9 9 14 14 15 1 35 बराबर है.
क्या मालूम 2000 9000 10,000 बराबर है। चलो 35,800 माइनस 15 तो 34,500। इतना कैश आपके पास अवेलेबल है और आपको पे करना है टोटल 40,000। तो फंड एक्सेस है शॉर्टेज है? शॉर्टेज है। अवेलेबल कैश, अवेलेबल कैश 34,500 राइट। वी हैव टू पे देम द लोन वर्सेस क्रेडिटर। अब इसमें कुछ ऐसा कुछ सिक्योर नहीं दिया। सिक्योर रहेगा तो कल किसी के सामने मशीनरी को का जो अमाउंट है तो पहले उसको पे किए, बाकी का बैलेंस को हम लोग रेशियो में पे किए। देयर इज नो सिक्योर गिवन, तो एवरीथिंग एक नॉर्मल है। 10,000 एंड इधर 30,000। रेशियो क्या आएगा? 1:3। कैसे करेंगे? यस 4 से डिवाइड कर दो। 4 8 जा 32 2, 4 6 जा 24 1, 4 2 जा 8 2 4 5 इंटू 1 है तो 8 6 2 5 3 75 6 3 जा 18 1 24 25 बराबर। तो 34,500 को हम लोगों ने 1:3 में डिवाइड कर दिया राइट। आफ्टर डिवाइडिंग लोन विल गेट 8625 and to creditor we will pay 25,875 rupees बराबर। चलो क्रेडिटर को लोन को पेमेंट करना है, क्या एंट्री आएगा? लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लोन टू कैश बैंक 8625। लोन टू कैश बैंक, इन कैश बैंक पार्वती लोन 8625। now get total 10,000 तो 75,301 ना 1375 आएगा। कहाँ डालते इसको हम लोग? टू डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा। ओके रिमेंबर है ना। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट वट एवर द बैलेंस आएगा दैट विल गो टू द डेफिशिएंसी। पार्वती लोन टू डेफिशिएंसी, इन डेफिशिएंसी बाय पार्वती लोन 1375। Similarly, we have to pay the creditors. Creditor to cash bank 25,875. Creditor to cash bank, in cash bank by creditor 25,875। क्या हुआ? 30,000 जिसको लेस करके अमाउंट की डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करने के लिए इसको बात हो गया। ये क्या किया साहब? फिटिंग देती है। कल रॉन्ग हुआ था, मैं मतलब मेरा रोज का ऐसा नहीं होएगा। कल क्या वो मेरा माइंड इधर था ही नहीं। ओके ना, ये तुलाने वाले में फिटिंग दे रही है। चलो क्रेडिटर को अब ये कैश बैंक आपका टैली हो जाए नॉर्मली। ओके ना, चेक कर लो। 25 75 100 1 3 4 4 and 6 10 18 1 2 2 8 10 5 15 1 3 वो कैश बैंक टैली हो जाएगा। ओके ना, बिकॉज वट एवर द कैश अवेलेबल था वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस टू लायबिलिटी ना, क्रेडिटर एंड लोन। सनी सोच के आया आज शर्त लगा ही लूँगा, आज लगा लूँगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, डेफिशिएंसी कुछ भी बोलते हैं। क्रेडिटर टू डेफिशिएंसी तो बाय क्रेडिटर अकाउंट 4125 बराबर आता है ना। वी विल क्लोज कैपिटल अकाउंट। चलो इस साइड ज़्यादा है 7,100 7,100 33 0 10 10 -1 9 6 1 1 3 9 3 3 2
डेफिशिएंसी अकाउंट. आई थिंक दिस साइड इज मोर. इसका तो उस साइड कुछ चाहिए नहीं था. दिस साइड इज मोर. 5167 7166. ओके, 5167 and 7166. दिस इज 4900. 261 आएगा. बराबर है, बराबर रहेगा भाई. कहाँ लिखते हैं उसको? बाय डेफिशिएंसी अकाउंट. CU capital to deficiency. CU to deficiency. In deficiency by CU capital. 1933. सदाशिव एंड सदानंद क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड में 2 सदाशिव कैपिटल. 2 कैपिटल अकाउंट लिखो. सदाशिव एंड सदानंद 7166. बस. नॉर्मली आपका ये क्या होना चाहिए? 13 1 12 13 1 3 4 7 4 3 3 5 5 10 3 13 1 8 8 to 10 10 and 3 13 1 4 4 1 5 5 9 14 1 2 6 7 हो जाएगा. और फाइनली आपका डेफिशिएंसी टैली हो जाएगा. तो क्या किया हम लोगों ने? पहला ऑल द पोस्टिंग की हम लोगों ने एंड देन असेट रियलाइज द गिवन तो नॉर्मल था. देन क्या किया हम लोगों ने? वो पार्टनर कुछ पैसे ब्रिंग कर रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. दैट वी डिड. एक्सपेंसिव पे था, रियलाइजेशन टू कैश वो भी नॉर्मल था. आफ्टर डूइंग दैट वी हैव क्लोज ऑल द रियलाइजेशन पार्ट और गेट द लॉस, डिस्ट्रीब्यूट देम. नाउ सी दैट कि कैश बैंक में कितना कैश आपके पास अवेलेबल है. तो क्या करना है? पेंसिल से टोटल करने हैं. पेंसिल से टोटल करो, माइनस करके इतना कैश अवेलेबल है. दैट कैश विल बी डिवाइडेड इनटू द पार्टनर पार्वती लोन एंड क्रेडिटर्स इन देयर रेशियो. मेक पेमेंट लोन टू कैश बैंक इन कैश बैंक बाय लोन. बाकी का जो डिफरेंस आएगा डेफिशिएंसी. पार्वती क्रेडिटर में क्रेडिटर टू कैश बैंक मेक द पेमेंट एंड द डिफरेंस विल गो डेफिशिएंसी. बराबर. फाइनली कैपिटल अकाउंट क्लोज करो. कैपिटल में कुछ भी बैलेंस आया रहेगा वो बैलेंस को अल्टीमेटली वेयर टू ट्रांसफर इन डेफिशिएंसी एंड द डेफिशिएंसी अकाउंट विल गेट टैली. कर सकते हो? पक्का? पॉज कर. क्वेश्चन 11 बिलो दैट. गंगा यमुना गोदावरी तीनों पवित्र नदियाँ हैं भाई. Ganga, Yamuna, Godavari are the partners sharing population equally, and their balance sheet as on 31st December 2010 was as follow. We got capital of Ganga, Yamuna and Godavari. We have current account also, remember. Yamuna and Godavari, debit side, right? And then we got premises. Okay, Ganga current account on the credit side. We got creditor and bank loan. तो देखिए करंट अकाउंट है. मशीनरी डेटर कैश बैलेंस. गोदावरी वाज इंसॉल्वेंट. ओनली वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, नॉट द ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट. इट्स अ नॉर्मल सम वन पार्टनर. हेंस द फर्म वाज डिसॉल्व एज ऑन दैट डेट. प्रीमाइसेस वाज सोल्ड एट 14,800. मशीनरी रियलाइज 6,400. बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 1,600. बैड डेब्ट्स. अब देखो डेटर का अमाउंट कितना है? See the debtor amount 9,600. In that 9,600 there is 1,600 bad debts हो गया. Bad debt मतलब लॉस. आई थिंक कल या परसों मैंने एक सम किया था, उसमें था डेटर इंसॉल्वेंट हो गया. वन ऑफ द कस्टमर, उससे 14,400 कुड नॉट रिकवर. तो बैड डेब्ट्स हो गया था ना. क्या कुछ था? डेटर 33,000 था कुछ, उसमें 14,400 कुड नॉट रिकवर, तो 19,100 कुछ रिकवर हुआ था. ओके ना, वैसा कुछ नंबर रहेगा. तो वैसे अभी 9,600 है, उसमें 1,000 क्या हो रहा है? बैड डेब्ट्स हो गया. तो बाकी का 8,000 विल बी रिकवर. तो डेटर से कितने पैसे मिला रहेगा? 8,000. ओके, टोटल डेटर 9,600. इन दैट 1,600 इज अ बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट. सम ऑफ द अमाउंट बैड डेब्ट्स वगैरह का. सम ऑफ द को बोला भाई ठीक है
थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ, लेकिन बाकी पैसे मुझे रिटर्न दे दो, पेमेंट करो. सो आफ्टर मेकिंग द डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स, रिमेनिंग अमाउंट वी गॉट रियलाइज्ड. तो डेटर रियलाइज कितना? 8,000. Sundry creditor to receive 80 paise in a rupee for the full settlement of their claim. Sundry creditor क्या बोल रहा है? 80 पैसे मस्त यार, 80 पैसा दे दूंगा उसको जहर खाने के लिए. 80 पैसे इन अ रूपी. इन अ रूपी मतलब 1 रुपीज़. 1 रुपीज़ आउट ऑफ 1 रुपीज़ 80 पैसे पेमेंट. 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे. 100 पैसे को 1 रुपया बोलते हम लोग की तरह. आप लोग शायद फॉरेनर हो, डॉलर वाले लोग हो, तो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़, राइट ना. तो इन 100 पैसे 80 पैसे, दैट इज 80%. वेनेवर से 80 पैसे इन अ रुपी 80%, 60 पैसे इन अ रुपी 60%, 40 पैसे इन अ रुपी 40%. तो क्रेडिटर को कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 80%. चेक करो क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 4,000 मिला. उसका 80% पेमेंट करने का अपने को 3,200. तो क्रेडिटर को वी हैव टू पे 3,200. क्रेडिटर टू रिसीव 80 पैसे इन अ रुपी इन द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम. क्रेडिटर बोलता है भाई मेरा जितना बाकी है ना उसका 80% पेमेंट कर दो बस. तो क्रेडिटर कितना है? 4,000 था, तो उसका 80% 3,200 वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर, राइट. ओके. बैंक लोन वाज सेटल्ड एट 60% बुक वैल्यू. और बैंक लोन कितना पेमेंट हो रहा है हम लोगों को? 60%. कितना बैंक लोन? 3,000. तो 3,000 का 60% 1,800. तो बैंक लोन को वी हैव टू पे 1,800. बराबर. चलो. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन द लायबिलिटी अंडर द एक्शन फॉर द डैमेज वाज सेटल्ड एट 1,400 अगेंस्ट 2,100 प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. क्या बोल रहा है? जब बिजनेस डिसोल्यूशन हो रहा था, शट डाउन, अंडर द एक्शन डैमेज वाज सेटल. मीन्स कंपनी जब बंद कर रहा था, अभी बंद करते मान लो मुझको क्लास बंद करना है तो बेंच चुन लेके जाऊंगा भाई बाहर. यहाँ तो पूरा पैक है, तो बेंच आएगा कैसे? लेके जाऊंगा कैसे? तो भी ज़बरदस्ती लेके जाने का सोच रहा था. तो ज़बरदस्ती के चक्कर में क्या हुआ, दूसरे का ग्रिल गैलरी सब तोड़ फोड़ दिया. तो मैं तो अपना लेके गया, लेकिन उसका बेचारा तोड़ दिया ना. तब वो बोल रहा भाई मेरे को पेमेंट करो, भर के दो मेरा. यू हैव टू मेक द कॉम्पनसेशन. ओके. देखिए अब बोला भाई कितना देने का है? तो बोले यार 10 लाख देना. मैं 10 लाख दूँ क्या? तो ऐसे तौर पे बोल रहा है क्या? द डिसोल्यूशन द लायबिलिटी अंडर द एक्शन फॉर द डैमेज वाज सेटल्ड फॉर ₹1,400. कितने में सेटल हो गया? 1,400. वाइल द 2,100 प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. मीन्स हम लोगों ने प्रोविजन कितना सोचा था, कितना पे करने का है? 2,100. बट एक्चुअली कितना पे किया? 1,400. इस चैप्टर में हम लोग लॉस प्रॉफिट का सोचते क्या? नो. तो फाइनली कितना पे हो रहा है? 1,400. दैट विल बी कंसीडर. तो लायबिलिटी एक्चुअली पे करना था 2,100, बट हम लोगों ने मांडोली कितने में किया? 1,400. तो पेमेंट का एंट्री कितना करना है? ओनली 1,400. बाकी का वो जो 700 है जस्ट इग्नोर. ओके. लायबिलिटी पे करना है. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड रियलाइजेशन टू कैश बैंक. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें 3 पॉइंट है. फर्स्ट क्रेडिटर को पे करना है 80%, बैंक लोन को पे करना है 60%, एंड देन देयर इज अ वन कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंटिंजेंट वाई? बिकॉज डैमेज किया आपने, तो मे बी और मे नॉट भी हो सकता है. तो दैट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी है. और कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअली 2,100 था, बट हमने उसको सेटल कितने में कर रहे? 1,400 में. ओके. एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 900. गोदावरी कंट्रीब्यूटेड 1,900 फ्रॉम हर प्राइवेट प्रॉपर्टी. गोदावरी कितना लेके आ रही है पैसे? 1,900. प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स. ऑल पार्टनर इंसॉल्व, वन पार्टनर? वन पार्टनर है. तो नॉर्मल सम है. क्या क्या आएगा अकाउंट? रियलाइजेशन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर कैश बैंक आएगा. बराबर. पॉज करो उसको. क्या कहते रहे? हे मोनू जी, कैपिटल का पहले पोस्टिंग, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ऑल 3 पार्टनर. देन करंट अकाउंट असेट साइड में गिवन यमुना एंड गोदावरी का 2 बैलेंस ब्रोक डाउन. यमुना का डेबिट साइड में 2,000 एंड गोदावरी का 4,000.
then premise all assets, realization debit side, to sundry assets. Premises 17,200 we got. चलो देन क्या है, गंगा करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, गंगा करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन. गंगा हाउ मच 3,000. क्रेडिटर लोन, इज इट द ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट समय है क्या? नो. तो रियल एस्टेट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर एंड बैंक लोन. चलो क्रेडिटर कितना है 4,000, बैंक लोन 3,000 बराबर. देन असेट्स में मशीनरी एंड डेटर, रियलाइजेशन डेबिट साइड 10,800, डेटर्स 9,600 and cash bank account debit side, right? यहाँ तक सब पोस्ट होंगे पहला. ओके. गोदावरी was declared insolvent and the firm dissolved. Asset sold, asset realize क्या आएगा? कैश बैंक टू रियलाइजेशन, तो बाय कैश बैंक. प्रीमाइसेस कितनी 14,800. फिर क्या है मशीनरी 6,400 एंड द गिवन बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट, तो बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट 1,600. डेटर कितना है? डेटर 9,600 बट इन दैट 1,600 बैड डेब्ट्स हो गया, तो रियलाइज कितना हुआ 8 था बराबर. ओके. और कुछ है क्या? नहीं. 8, 4, 12, 1, 10, 11, 11, 19, 1 बराबर है 20, 28, 29, 200 बाय कैश बैंक, द कैश बैंक टू रियलाइजेशन. assets realized, $29,200. Okay. Now liability pay, what given the creditor to receive 80 पैसे in a rupee in the full settlement. लायबिलिटी देखो क्रेडिट साइड है, तो पेमेंट किया तो अभी डेबिट साइड, रियलाइजेशन टू कैश बैंक. क्रेडिटर्स 80 पैसे इन अ फुल सेटलमेंट दो. कितना क्रेडिटर है 4,000 का 80%, 3,200 राइट है ना. 80 पैसे इन रुपये 80%. सिमिलरली बैंक लोन वाज सेटल एट 40%, 60%. बैंक लोन 3,000 है, उसका 60% हाउ मच 1,800 आएगा. ओके. और क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी अंडर द एक्शन फॉर द डैमेज वाज सेटल 1,400. लायबिलिटी अगेंस्ट द डैमेज, आपने किसी का कुछ नुकसान कर दिया है, अब वो सामने वाला आपसे बोला भाई मेरा कॉम्पनसेशन भर के दो, मेरा नुकसान भर के दो. सामने वाला कितना डिमांड कर रहा है 2,100, बट इवेंचुअली हम लोगों ने कितने में सेटल किया 1,400 बराबर. कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिन्यू लायबिलिटी 1,400 में सेटल हो गया. ओके. कितना 6,400 रियलाइजेशन टू कैश बैंक, लायबिलिटी रियलाइज 6,400 बराबर. चलो देन व्हाट इज दैट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज 900. डिसोल्यूशन एक्सपेंस रियलाइजेशन टू कैश बैंक
तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 900. देन गिवन द गोदावरी पेमेंट. तो बट जो पार्टनर इंस्टॉलमेंट है उसको हम लोग होल्ड करते हैं ना वर्किंग नोट करने के लिए. वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट से हमें यहाँ रिमेंबर. पहले आप टॉर्च लेके चेक करो लाइबिलिटी पे किया क्या आपने. क्रेडिटर यस. बैंक लोन यस. ऑलरेडी वी पेड दैट. क्लोज द बुक्स. 20 9 4 13 13 and 6 19 19 and 10 29 2 9 9 and 18 18 6 24 2 4 बराबर है. सही है. कौन बोल रहा है. 44 900. इस साइड कितना आएगा. 36 200 7 9 16 136. तो 708. कितना आंसर दिया है. बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. पार्टनर कौन है. गंगा यमुना एंड गोदावरी. ओके बच्चों रेशियो क्या था. इक्वल है. तो 2900 2900 बराबर है. 3 2 जा 6 2 3 9 जा 27. कहाँ डालते इसको. नो पहला करंट अकाउंट. पहला करंट अकाउंट डालना है बाद में कैपिटल अकाउंट डालना है. क्रेडिट डालो डेबिट साइड. टू रियलाइजेशन अकाउंट 2900 2900 2900. क्लोज करो. 3000 क्रेडिट साइड है. कितना आएगा बैलेंस. 100 रुपये. और बाकी ये दोनों का साइड ज़्यादा है. 4900 6900. कुछ आई नहीं तो कंप्लीट बैलेंस बराबर. कहाँ पोस्ट करूँ. दैट विल गो टू द कैपिटल अकाउंट. कोई अभी वो पीछे वाले सम के में ही रहेंगे दिमाग में. डेफिशिएंसी अकाउंट करंट अकाउंट से देन नाउ कैपिटल अकाउंट में आएगा. टू कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट बराबर. पहले मतलब करंट एंड कैपिटल अकाउंट है. करंट क्लोज करो एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू फर्स्ट कैपिटल अकाउंट. कैसे करेंगे देखो. ये गंगा का करंट अकाउंट ना. गंगा करंट टू गंगा कैपिटल अकाउंट. इन गंगा करंट अकाउंट डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड बाय गंगा करंट अकाउंट. 100 रुपीज़ राइट. गंगा करंट अकाउंट क्या डेबिट था ना तब उसको क्रेडिट साइड कर दिया. और इधर देखो यमुना और गोदावरी का क्रेडिट साइड तो डेबिट साइड. टू करंट अकाउंट यमुना एंड गोदावरी. यमुना 4900 एंड गोदावरी का कितना आएगा 6900 राइट है. देखो गंगा का करंट अकाउंट डेबिट था तो गंगा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ गया. यमुना का क्रेडिट साइड और लोग का दोनों का डेबिट साइड में आ गया राइट. नाउ वी हैव टू गो फॉर अ वर्किंग नोट फर्स्ट. हु इज इंसॉल्वेंट. गोदावरी इंसॉल्वेंट. गोदावरी इंसॉल्वेंट. हाँ कोई कोलाबेरी कोलाबेरी बोल रहे हैं. कौन रहे. गोदावरी इंसॉल्वेंट. चलो कैसे करते हम लोग. पहला टोटल डेबिट कैपिटल. गोदावरी का टोटल डेबिट कैपिटल कितना है 6 26 11 होने वाला है क्या. कसाबा में ला देना गया कसाब. टोटल डेबिट कैपिटल माइनस टोटल क्रेडिट कैपिटल
कितना है 5000, 1900 बैलेंस है, बराबर है। गोदावरी इंसॉल्वेंट, तो टोटल डेबिट कैपिटल 6900, टोटल क्रेडिट कैपिटल 5000, बैलेंस 900। अभी देखो गोदावरी कुछ लेके आ रही है, बिकॉज गोदावरी पवित्र नाम है तो अपने नाम के हिसाब से काम करेगी, किसी पे मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। जितना बैलेंस है वो पूरा लेके आ रही है, तो अदर जो सॉल्वेंट पार्टनर वो लोग पे कोई बर्डन नहीं जाने वाला है। आजकल के चोर की तरह थोड़ी है, ओके। कलयुग रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ओके। वो पहला का रूल था, प्राण जाए पर वचन, अभी वचन जाए पर प्राण न जाए। चलो कितना ब्रिंग हो रहा कैश? कैश ब्रिंग 1900, तो जितना बैलेंस था वो पूरा ही लेके आ रही है ना, तो डेफिशिएंसी कितना रहेगा? नथिंग। जब कुछ डेफिशिएंसी नहीं है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर पे मैं मरते मरते किसी पे बोझ बन के नहीं जाना चाहती हूँ, ओके। जैसे क्रिश्चियन लोग का डेथ होता है, लोग एकदम हंसते गाते जाते हैं लोग, और बाकी लोग का डेथ होता है तो रोते हुए जाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग वो इस तरह से जो जीते लाइफ को कि किसी पे बर्डन नहीं बनते लोग, ओके ना। और बाकी लोग इमोशनल ड्रामा करते हैं। चलो पहले एक कैश का एंट्री करना पड़ेगा, एक कैश अकाउंट डेबिट टू गोदावरी कैपिटल, बराबर। और इसका एंट्री करूँ, कुछ डेफिशिएंसी शॉर्टेज ही नहीं है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। क्या करूँ फिर? तो ऐसे छोड़ देना। कैश आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गोदावरी कैपिटल, कैश बैंक टू गोदावरी, कितना? 1900। कैश बैंक टू गोदावरी, तो गोदावरी में बाय कैश बैंक, वो 1900, राइट। ना गोदावरी का टैली करा दो, 6900, 6900 वो सेटल। अब क्या करते हैं हम लोग, बाकी लोगों को भी क्लोज करा लो। 25,100 और एक का था 10,000, 25,100 और ये 10,000, तो 5,100। क्या करेंगे? फाइनल सेटलमेंट कैश बैंक, कैपिटल टू कैश बैंक बाय कैपिटल अकाउंट, गंगा यमुना, 25,100, 5,100. It should get 4 2 6 6 9 15 1 7 7 9 16 16 17 1 37,500 9 10 11 11 and 4 15 1 7 7 and 10 17